ایک زمانے کی بات ہے، ایک دولتمند تاجر تھا جو اپنے 6 بچوں کے ساتھ ایک آرام دہ گھر میں رہتا تھا۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ وہ ایک عقل مند شخص تھا جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر کسی قسم کا خرچ اٹھانے سے دریغ نہیں کرتا تھا تاکہ وہ اچھی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس کی بیٹیاں اپنی اپنی جگہ خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی غیر معمولی حسن کی مالک تھی، جس کی وجہ سے بڑی بہنوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ جس دن وہ پیدا ہوئی، ہر کوئی اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا اور اسے لٹل بیوٹی کہہ کر پکارنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب وہ ایک نوجوان حسن لڑکی بن گئی تو یہی نام اس کی پہچان بن گیا۔ فطری طور پر اس بات نے بڑی بہنوں کے حسد کو اور گہرا کر دیا۔ دونوں بڑی بیٹیاں غرور اور شاہانہ انداز زندگی کی عادی تھیں۔ وہ عام قصبے کے لوگوں یا دوسرے تاجروں کی بیٹیوں سے میل جول رکھنا اپنی توہین سمجھتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ صرف ڈیوکس یا ارلز جیسے اعلیٰ رتبے کے لوگوں کے رشتے ہی قبول کریں گی۔ ہر روز وہ دعوتوں، محفلوں، تھیٹر اور موسیقی کے پروگراموں میں جایا کرتی تھیں۔ اس کے برعکس بیوٹی کو کتب سے خاص شغف تھا۔ وہ گھنٹوں کتابیں پڑھنے میں گزار دیتی، کبھی دور دراز سرزمینوں کی کہانیاں، کبھی دانش و حکمت کے قصے۔ فارغ وقت میں وہ گانا گاتی یا ہارپسکارڈ بجایا کرتی۔ رشتوں کی کمی نہ تھی۔ کئی مالدار حضرات نے بڑی بہنوں سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر سب کو ٹھکرا دیا گیا۔ وہ صرف اعلیٰ طبقے میں رشتے کرنا چاہتی تھیں۔ دوسری طرف بیوٹی نے نہایت شائستگی سے اپنے تمام چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ Thank you, but I am still too young to marry. I wish to spend more time with my father. پھر ایک دن بدقسمتی نے دستک دی۔ تاجر نے اپنی ساری دولت کھو دی۔ تقریباً ایک ہی رات میں وہ مفلس ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک سادہ سا دیہی گھر رہ گیا تھا جو شہر کی چہل پہل سے بہت دور تھا۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے اپنے بچوں کو حقیقت بتائی کہ اب انہیں وہاں جا کر رہنا ہوگا اور اپنے ہاتھوں سے گزر بسر کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی دونوں بڑی بیٹیاں غصے سے بھر گئیں۔ انہوں نے گاؤں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کیسے چھوڑ سکتیں؟ انہیں یقین تھا کہ ان کے عاشق ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مگر جیسے ہی دولت ختم ہوئی، محبت بھی ختم ہو گئی۔ جو لوگ ان کے حسن اور آسائش کے دلدادہ تھے، وہ سب جلد ہی انہیں بھلا بیٹھے۔ مقامی لوگ ان کے تکبر پر ہنستے اور ان کے زوال پر خوشیاں مناتے۔ اس کے برعکس بیوٹی نے نرمی اور ہمدردی سے آگے بڑھ کر کہا، وہ ضرور جائے گی، چاہے زندگی کتنی ہی سادہ اور عاجزانہ کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے والد کے ساتھ رہے گی اور ان کا دکھ بانٹے گی۔ وہ اپنے نقصان پر روئی ضرور، مگر جلد ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ غم منانے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ جب وہ لوگ دیہی کیٹیج میں پہنچے تو زندگی بالکل بدل گئی۔ والد اور بیٹے محنت سے زمین کا کام کرنے لگے، جبکہ بیوٹی صبح سویرے اٹھ کر صفائی، کھانا پکانے اور گھر کے انتظامات میں مصروف ہو جاتی۔ شروع میں اسے یہ سب انتہائی تھکا دینے والا لگا، کیونکہ وہ اس طرح کے کاموں کی عادی نہیں تھی، مگر صرف 2 مہینوں میں اس کی صحت بہتر ہو گئی، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط۔ گھر کے کام ختم کرنے کے بعد وہ کتابیں پڑھتی، ہارپسکارڈ کی مشق کرتی، گانا گاتی یا اون کاٹنے میں مصروف رہتی۔ ادھر دونوں بڑی بہنیں اپنا وقت غفلت اور شکایت میں ضائع کرتی رہیں۔ اسے دیکھو، فرش صاف کر رہی ہے، کتنی بے رنگ زندگی گزار رہی ہے۔ ہاں، خود کو بڑا سمجھتی تھی، اب دیکھو حال۔ آنسو بہانے سے ہماری دولت واپس نہیں آئے گی۔ مجھے سیکھنا ہوگا کہ بغیر دولت کے بھی خوش رہنا ممکن ہے۔ ان کے والد کے دل میں اس سب کے بعد بیوٹی کی قدر اور بڑھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، بلکہ مہربان، منکسر المزاج اور غیر معمولی طور پر مضبوط ارادے والی ہے۔ یوں ایک پرسکون سال گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن
ताजिर को एक निहायत खुशकुन खबर मौसूल हुई। एक जहाज जो इसकी तिजारती अशिया लेकर गया था बिल आखिर बहिफाजत बंदरगाह पर पहुंच गया। उम्मीद की किरण दोबारा जाग उठी। मुझे क्रिम्सन सिल्क गाउन चाहिए और मैं चाहती हूँ रिबन्स और कुछ फाइन ट्रिंकेट्स। ब्यूटी, आपको क्या चाहिए? मुझे बस एक गुलाब चाहिए। क्योंकि उनकी वादी में गुलाब नहीं उगते थे, इसलिए इसे किसी ऐशो आराम की ख्वाहिश नहीं थी। इसके वालिद ने इसकी सादगी और ज़ब्त देखकर मुस्कुरा दिया और वादा किया कि वो इसके लिए गुलाब ज़रूर लाएगा। लेकिन जब वो शहर पहुंचा तो इसे अपनी अशिया के सिलसिले में कानूनी झिमीलों का सामना करना पड़ा। सब कुछ उल्टा पड़ अफसोस गया। है, लेकिन ये आखिरी फैसला है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो पहले से भी ज्यादा गरीब होकर वापस रवाना हुआ। दिल शिकस्ता जरूर था, मगर हिम्मत न हारी और घर वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में तूफान आ गया। बारिश ने बर्फ की शक्ल इख्तियार कर ली। हवा के झकड़ चलने लगे और 2 बार वो अपने घोड़े से गिर पड़ा। अंधेरा छा गया। दूर कहीं भेड़ियों के हवा में गूंजते हुए आवाजें सुनाई दी और भूख और सर्दी ने उसके हौसले तोड़ने शुरू कर दिए। इसी असना में दरख्तों के बीच से उसे एक रोशनी दिखाई दी। उसने घोड़े को तेजी से इस सिमत दौड़ाया और जल्द ही वो एक शानदार महल के सामने पहुंच गया, जो ऊपर से नीचे तक रोशन था मगर खामोश। कोई नौकर खैर मकदम के लिए नहीं आया। अस्तबल खुला हुआ था और उसमें चारे की फरावानी थी। उसका थका हुआ घोड़ा शुक्रगुजार अंदाज में खाने लगा जबकि ताजिर महल में दाखिल हुआ। अंदर एक पुरतायुश दस्तरखान सजा था जिस पर सिर्फ एक नशिस्त रखी गई थी। वो भीगा हुआ और थका मांदा था, मगर हिम्मत करके कुछ चिकन और शराब ले ली। ऊपर एक कमरे में उसे एक आरामदेह बिस्तर मिला। थकन से चूर वो उस पर गिरा और गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह ताखीर से उठकर जब वो जागा तो उसने देखा कि उसके लिए ताज़ा कपड़े सजाए गए थे। खिड़की से बाग नजर आया जो फूलों से भरपूर था। अपनी नामालूम बख्शिश कुनिंदा का शुक्र अदा करते हुए उसने हल्के से चॉकलेट पी और खामोशी से मैडम फेरी का शुक्रिया अदा किया। मगर रवानगी से चंद लम्हे कबल उसने ब्यूटी की ख्वाहिश याद की। वो बाग में गया और एक गुलाब का फूल तोड़ लिया। अचानक एक कड़ी आवाज ने कहा, नाउजुबिल्लाह। नाशुक्री, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुमने मेरा गुलाब चुरा लिया है। बुराहे मेहरबानी साहब, ये मेरी बेटी के लिए था। उसने और कुछ मांगा ही नहीं था और कुछ मांगा है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम अपनी एक बेटी वापस लाकर मेरे सामने पेश न करो, वरना तुम खुद 3 महीनों के अंदर मेरे सामने वापस आ जाना। यहाँ से तुम अपनी पसंद की चीजें एक संदूक में रखकर जा सकते हो। खाए जाने और बेटी पेश करने के दरमियान इंतखाब में ताजिर को ये कुछ तसल्ली बख्श लगा कि उसे पहले अलविदा का मौका तो मिल रहा था। वो घर पहुंचा। सब कुछ अपने घर वालों को बताया और खास तौर पर ब्यूटी को गुलाब सौंप दिया। अब इसकी मौत यकीनी है। ब्यूटी ने पुरअज़्म लहजे में कहा, मैं जाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, हम ही बीस्ट को मार डालेंगे। उसके भाइयों ने जिद की कि वो जाएंगे और बीस्ट को मार डालेंगे। नहीं, मेरा फैसला यही है कि ब्यूटी ही जाएगी। कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर ताजिर ने किसी की ना सुनी। उसने ब्यूटी की बहादुरी को सराहा और इजाजत दे दी कि वो खुद जाए। उसने संदूक में छुपी दौलत के बारे में किसी को कुछ ना बताया ताकि खानदान दोबारा शहर लूटने का मुतालिबा ना करे। अगली सुबह वो दोनों रवाना हुए। बीस्ट ने निहायत नरमी और शाइस्तगी से उनका खैर मकदम किया। क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। बीस्ट ने उसके वालिद को सुबह सवेरे घर वापस जाने की इजाजत दी, लेकिन उसे सख्ती से ताकीद की कि वो कभी वापस ना आए
बाप ने शुक्रगुजारी के साथ ये वादा कबूल कर लिया। अब ब्यूटी महल में अकेली रह गई। वो उदास थी, सब कुछ अजनबी और खौफनाक लग रहा था, मगर जल्द ही उसने फैसला किया कि जो होना है उससे बेहतरीन तौर पर निभाया जाए। उसने महल की सैर शुरू की और एक दरवाजा देखा जिस पर उसका नाम लिखा था। दरवाजा खोलने पर उसने पाया कि अंदर हर वो चीज मौजूद है जो वो पसंद कर सकती थी। एक आलीशान ख्वाबगाह, एक कुतुब खाना, एक हार्पिस कॉर्ड और कुतुब का एक हसीन जखीरा। एक खुली किताब के सफ़े पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, खुश आमदीद ब्यूटी, खौफ को दिल से निकाल दो, तुम यहाँ की मलका और मालिक हो, जो चाहो वो कहो, तुम्हारी ख्वाहिश फौरन पूरी की जाएगी। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरे वालिद खैरियत से हैं या नहीं। और इसी लम्हे एक जादुई आईना नमूदार हुआ जिसमें उसने देखा कि उसके वालिद सही सलामत घर पहुंच चुके हैं। महल में हर शाम शानदार ज़ियाफत और खामोश मगर दिल मुह लेने वाले मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद होते थे। रात के खाने पर हमेशा बीस्ट आता और उसके साथ बैठता। एक दिन उसने पूछा, क्या तुम मुझे बदसूरत समझती हो? हाँ, कुछ हद तक। मैं जानता हूँ कि मैं बदसूरत हूँ और मुझ में अक्लो फहम की भी कमी है। ज़ाहिरी शक्ल नहीं, दिल की खूबी ही असल अहमियत रखती है। आहिस्ता आहिस्ता वो समझने लगी कि बीस्ट दरअसल मेहरबान और हसास दिल का मालिक है। वो उसके ख्याल रखने की आदत को सराहने लगी। हर शाम ठीक 9 बजे बीस्ट आता। उसकी नरमी, वफादारी और मोहब्बत भरा रवैया ब्यूटी के दिल को गरमाता। लेकिन हर रात वो एक ही सवाल करता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ और तुम्हारी कदर करती हूँ। वक्त गुजरता गया और ब्यूटी को एहसास होने ने लगा कि वो उसकी रफाकत पर इन्हिसार करने लगी है, बल्कि उसकी मोहब्बत दिल में जगह बनाने लगी है। एक दिन उसने कहा, मैं अपने वालिद को देखना चाहती हूँ। तुम जा सकती हो, मगर वादा करो कि 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाओगी। फिर उसने एक अंगूठी अगर पेश तुम की ये और अंगूठी रात समझाया, को बिस्तर के पास वाली मेज पर रखकर सो जाओ तो सुबह आंख खुलते ही तुम अपने घर पहुंच जाओगी। और अगर तुम वापस मेरे पास आना चाहो तो फिर भी यही करना होगा। जब ब्यूटी घर पहुंची वो पुकार उठी, अबू, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरा करम है। उसने देखा कि एक संदूक भरा हुआ है खूबसूरत लिबासों से। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे जादू से नमूदार हुआ हो। ब्यूटी ने उनमें से सबसे सादा लिबास पहना। इसी दौरान उसकी बहनें अपने शौहरों के साथ पहुंचे और उसकी शान और शौकत देखकर उनके दिलों में हसद की आग भड़क उठी। बड़ी बहन का शौहर खुबरू मगर मगरूर आदमी था, जबकि दूसरी बहन का शौहर तंजो तमस्खुर में जालिम था। उसके जुमले चपटे मगर बेएहसास थे। उन्होंने एक चालाक मंसूबा बनाया। अगर वो अपना वादा तोड़ दे और ज्यादा दिन ठहर जाए तो शायद बीस्ट उसे सजा दे। आओ, हम इससे नरमी और मोहब्बत से पेश आएं ताकि वो रुक जाए। ब्यूटी की खुशी देखकर दोनों बहनें रो पड़ीं, लेकिन उनके आंसू इखलास के नहीं बल्कि हसद के थे। ब्यूटी, प्लीज मत जाओ, कुछ दिन और हमारे साथ रहो। हाँ बहन, तुम्हारे बगैर घर सोना लगता है। और यूं उन्होंने ब्यूटी को रोकने के लिए मीठे लहजे, मोहब्बत भरे अल्फाज और दिखावे की हमदर्दी से घेर लिया। और वो एक और हफ्ता रुकने पर राजी हो गई, मगर उसके दिल पर बोझ था। वो बीस्ट से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगी थी और ये ख्याल कि वो उसकी गैर मौजूदगी में तकलीफ में होगा उसे अंदर से तड़पा रहा था। 10वीं रात उसने एक ख्वाब देखा। बीस्ट जमीन पर गिरा हुआ है, गम से निढाल और मरने के करीब। वो चीख कर जाग उठी। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं इतनी सिंगदिल क्यों बनी रही? उसने फौरन अंगूठी मेज पर रखी, आंखें बंद की और सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो दोबारा बीस्ट के महल में थी। सुकून और राहत के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। इस शाम उसने सबसे खूबसूरत लिबास पहना ताकि जब बीस्ट आए तो वो उसे खुशामदीद कह सके,
मगर जब घड़ी ने 9 बजाए वो ना आया। खौफ ने उसके दिल में लर्जा तारी कर दिया। वो घबराहट में पूरे महल में दौड़ने लगी। हर कमरा, हर बाग, हर राहदारी में उसे तलाश करती रही। ब्यूटी बाग के उस हिस्से में पहुंची जहां एक नहरी नाला बह रहा था। वहां उसने बीस्ट को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वो बेहोश और खून में लथपथ था। बीस्ट ने कमजोर आवाज में कहा, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। नहीं, बराहे करम मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी रफीके हयात बनना चाहती हूँ, अरे तुम्हारी बीवी। ये अल्फाज जबान से निकलते ही पूरा महल नूर में नहा गया। चराहों, आतिशबाजी और दिलकश मौसीकी ने फजा को भर दिया। लेकिन ब्यूटी की नजरें एक ही मंजर पर जमी रहीं। वहां बीस्ट नहीं बल्कि एक खूबसूरत और बावकार शहजादा खड़ा था। एक जादुई परी ने मुझे बदसूरत शक्ल में मुब्तला कर दिया था। तुमने ये जादू तोड़ दिया है। तुम्हारी मोहब्बत और नरमी ने मुझे आजाद कर दिया। इसी लम्हे वही परी नमूदार हुई जो ब्यूटी के ख्वाबों में आती थी। उसके साथ उसका वालिद और सारा खानदान भी, जो जादू के जरिए महल में मुंतकिल कर दिए गए थे। परी ने ऐलान किया, बनेगी, मगर अपनी नरमी, मोहब्बत और शराफत कभी नहीं खोएगी। फिर उसने दोनों बड़ी बहनों की तरफ रुख किया। तुम्हारा अंजाम मुख्तलिफ होगा। तुम खुद अपनी बहन के महल के बाहर पत्थर की मूर्तें बनकर रहोगी। यूं ब्यूटी और शहजादे की शादी हो गई और वो कई बरसों तक खुशी, मोहब्बत और वकार से जिंदगी गुजारते रहे। एक ऐसी खुशी जो मोहब्बत, नेकी और खुलूस पर मबनी थी, जैसा कि हर अच्छे अफसाने का इख्तिताम होता है।